Hello, students. Once again, I'm here to explain the chapter 1, the Earth and the Solar System from your geography book. What we see at night? At night, the whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. So, suppose it's a cloudless night and you are sitting outside looking up at the twinkling lights in the dark sky above you. You wonder about those stars and what they are made up of. जब भी कभी हम रात में देखते हैं तब हम हमेशा सोचा करते थे कि आखिर ये ट्विंकलिंग स्टार्स ये हैं क्या. एंड हमने एक पोएम भी पढ़ी थी बचपन में. Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what they are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. So, अकेले हम ही नहीं, people thousands of years ago wondered the same thing. And now, we have some pretty cool answers to these questions. हमारा ये चैप्टर हमको बताएगा what we see at night and what are stars, planet. And a full moon occurs once in about a month's time called full moon night or Purnima, and a fortnight later यानी कि 2 weeks के बाद you cannot see the moon at all, which is called the new moon night or Amavasya. There are other celestial bodies. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. That means, जो भी हम ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हुए नाइट में देखते हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, सो उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. Stars. If we talk about stars, so stars are celestial bodies which have their own heat and light, which they emit in large amounts. You believe it or not, but our sun is also a star. So stars are basically the bright ball of hot gases that we can see on a clear night. Stars are balls of hot explosive gases that make their own light and heat energy. Now let's talk about constellations. So in the night sky, various patterns are formed by different group of stars called constellations. आप रात में अगर देखेंगे स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं. तो इस पैटर्न को कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, जिसको हम सप्तऋषि तारामंडल भी बोलते हैं. योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट इट, मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट इट. सो सप्त 7 ऋषि सागास, इट इज a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. पहले के ज़माने में जब सैटेलाइट्स नहीं थे और भी नेविगेशन वगैरह के लिए कोई और सोर्सेस तो थे नहीं, तो अब डायरेक्शंस को कैसे पता लगाया जाए, तो स्टार्स को देखकर डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था रात के समय. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इसको कि हम पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा भी कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. हमेशा अपनी ही सेम पोजिशन में रहता है, हमेशा नॉर्थ में रहता है. प्लैनेट्स. So planets are celestial bodies that do not have their own heat and light. अभी हम बात कर रहे थे स्टार्स की जिनके पास अपना हीट लाइट है. बट प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट. अब हीट और लाइट तो चाहिए हर प्लैनेट को. सो दे ऑल लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जिनको की हीट और लाइट स्टार्स से मिलती है. द वर्ड planet comes from the Greek word planetai,
which means wanderers, यानी कि घुमक्कड़, इधर उधर घूमने वाले. The earth on which we live is a planet also. It gets all its heat and light from the sun. हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है. हमको कैसे ये हीट और लाइट का जो सोर्स है हमारा, वो हमारा है सन. The moon that we see in the sky is a satellite. अर्थ का सैटेलाइट है मून. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat, लाइट फ्रॉम द सन. हमारे अर्थ की तरह 7 और भी प्लैनेट है, 7 और भी प्लैनेट्स हैं जिनको हीट और लाइट सन प्रोवाइड कराता है. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. उनमें से कुछ प्लैनेट्स के पास अपने मून भी हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम. यहाँ पर मैंने एक इमेज भी प्लेस की है जिसमें कि पूरा सोलर सिस्टम बताया गया, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, Uranus, Neptune. So, the solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. सबसे पहले हमारे solar system में बात करेंगे हम sun की. The sun is the center of solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. एक ऐसी फोर्स सन से निकलती है, पुलिंग फोर्स, जिसकी वजह से सारा सोलर सिस्टम जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट को फॉलो करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. और द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम. हमारा जो अर्थ, सन और इसके साथ इसका पूरा जो सोलर सिस्टम है, इसको हीट लाइट प्रोवाइड कराने का पूरा जिम्मा जो है वो सन ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स. सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, अगर हम सन से उनके डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are called orbit. अब अगर आप path का मीनिंग में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, path का मतलब होता है रास्ता. So अपना एक फिक्स रास्ता, फिक्स पाथ फॉलो करते हैं जो प्लैनेट्स हैं, और इनका जो फिक्स्ड पाथ है जिस पर ये फॉलो करते हैं, जिसको ये उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. इट टेक्स अबाउट 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Venus को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना इसका शेप, साइज जो है वो अर्थ से सिमिलर है. Till recently, Pluto was also considered a planet. पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन आफ्टर द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक डिसीजन लिया गया कि लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में भी ये प्लूटो है उसको हमें ड्वार्फ प्लैनेट मानना चाहिए. यानी कि ड्वार्फ मतलब कि ड्वार्फ को बोलते हैं बौना, छोटा सा प्लैनेट. अर्थ. So, हमारा planet, the Earth, is the 3rd nearest planet to the Sun. In size, it is the 5th largest planet. अगर हम size में बात करें तो 5th largest planet है Earth. It is slightly flattened at the poles. यानी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरा सर्कल में है. At the top and bottom थोड़ा सा flat है Earth. The Earth shape is described as joint. Conditions favorable to support life are probably only found on Earth. जो जीवन जीने की जितनी कंडीशंस हैं, लाइफ अगर कहीं पॉसिबल है तो वो सिर्फ हमारे प्लेनेट पर ही है, अर्थ पर. It has water and air which are very essential for survival. The air has life supporting gases like oxygen. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water.
अगर हम आउटर अपीयर से देखिए तो अर्थ ब्लू लगती है, ब्लू दिखाई देती है। उसका रीजन यही है कि 2/3 सरफेस जो है अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से। इट इज ऑल्सो, इसीलिए इसको एक ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। नाउ मून इज द अर्थ सैटेलाइट। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. हमें इसीलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि जो अर्थ है उसके नियर है, सबसे ज्यादा वो है मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। जो डिस्टेंस है अर्थ से मून का वो है 3,84,400 kilometers. It takes exactly the same time to complete one spin, यानी 27 days का टाइम लग जाता है एक स्पिन लेने के लिए इसको। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. Moon पर life possible नहीं है। It has mountains, plains, depressions on surface. These cast shadows on the moon surface. अगर आप मून जब भी देखते हो तो जो काली काली परछाइयां दिखाई देती हैं, जिसको हम कहते हैं ना चांद पर दाग है, तो वो एक्चुअली शेडोज हैं, जो कि छाया हैं, परछाइयां हैं, जो मून पर जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, इन सबकी जो परछाइयां पड़ती हैं, शेडो पड़ती हैं, वो हमको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमको ऐसे दिखाई देते हैं कि चांद पर दाग लगा हुआ है, जो हमारी पोइट्री में पोइट्स लिखते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड्स एंड मेटेराइड्स। सो एस्टेरॉइड्स आर टाइनी बॉडीज that move around the sun. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Mars और Jupiter का जो ऑर्बिट है उसके बीच में, ऑर्बिट यानी कि हमारा फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड रास्ता जिस पर कि प्लैनेट्स घूमा करते हैं, जिसको कि प्लैनेट्स फॉलो किया करते हैं। तो मार्स के और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं ज्यादातर। और scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. बहुत सारे सालों पहले जो planets explode हो गए थे, explode मतलब विस्फोट हो चुका था जिनमें, तो उनके जो टुकड़े हैं इनको एस्टेरॉइड्स माना गया है। साइंटिस्ट ने इनको एस्टेरॉइड्स बोला है। अब है मेटेरॉइड्स। सो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो meteorites होते हैं ये अर्थ पर गिरने वाले होते हैं। So during this process, due to friction with air, they get heated up and burn. लेकिन अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्पीड में आते हैं और दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और जल जाते हैं गिरने से पहले ही। और इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसीलिए कभी कभी हमको एक बहुत बड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैटर पूरी तरीके से नहीं कंप्लीटली बर्न हो पाता, जल पाता और अर्थ पर गिर जाता है, और इसके गिरने की वजह से हॉलो यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, छेद हो जाता है। अब है हमारी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। सो अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड द मिल्की वे या गैलेक्सी। इस इमेज में आप देखिए ये जो जगह है, ये यहाँ पर, ये हमारी आकाशगंगा है। So a cluster of millions of stars is called the Milky Way या galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. पहले के ज़माने में लोग ये मानते थे कि एक रोशनी की एक रिवर बह रही है स्काई में, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया आकाशगंगा। So a galaxy is a huge system of billions of stars. बात करें कि गैलेक्सी है क्या, तो बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं उनका एक ह्यूज सिस्टम इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सब हैं
ये आकाशगंगा या गैलेक्सी. In clouds of dust and gases, there are millions of such galaxies that make the universe. बहुत millions of galaxies हैं हमारे universe में और इन्हीं सब से मिलकर हमारा universe form हुआ है. That's all for today. Thank you for watching. Keep studying. मैंने quotation भी लिखी है. Teachers can only open the door, but you must enter it yourself. हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं तुमको, दरवाजे तक ले जा सकते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर जाना तुमको खुद है. यानी कि रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन पढ़ो या ना पढ़ो, इट्स अप टू यू. सो प्लीज कीप स्टडीइंग, फोकस ऑन इट. थैंक यू वेरी मच.